Very good morning. So yesterday we started with the topic what makes the elections in India democratic, right? And under that we had covered the Independent Election Commission. Today we will talk about the other features which makes the elections in India democratic one. This is the popular participation. Popular participation means the number of people who are voting on a polling day. हमारे कंट्री का जो वोटर्स टर्नआउट है that itself indicates that the people participate wholeheartedly in this process of election. And over the last 50 years, the turnouts in Europe and North India, this has declined. But in India, the turnout has either remained stable or actually grown up. Voters turnout क्या होता है? Number of voters voting on polling day divided by number of total eligible voters in that area multiplied by 100. It is always there in percentage. Right? Yesterday we had done it कि हमेशा percentage में होता है. What other things makes the elections very popular? In India, the poor, illiterate and underprivileged people vote in larger proportion as compared to the rich and privileged sections. Whereas it is not there in other countries. वहाँ पर जो रिच हैं या ज़्यादा एजुकेटेड है वो ही वोट दे देते हैं, बाकी जो है वो या तो अनअवेयर हैं, वो ज़्यादा पार्टिसिपेट भी नहीं करते हैं. Besides this, other features are also that the common people in India attach a lot of importance to elections. And they feel that through elections, they can bring pressure on political parties to adopt policies and programs favorable to them. उन्हें ये लगता है कि अगर जिसको उन्होंने वोट दिया है वो जीत जाता है तो लेटर इन फ्यूचर अगर इनको कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई पॉलिसीज पे आपने प्रेशराइज करना है गवर्नमेंट को, तो ये आराम से कर सकते हैं. तो यही एक मेंटालिटी लेकर जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा वोट करते हैं. The interest of voters in elections related activities has been increasing over the years. During 2004 elections, more than 1/3 voters took part in a campaign related activities. तो लोग बहुत ज्यादा कि तो एक्साइटेड हो जाते हैं हमारी कंट्री में, और ऐसा कुछ इवेंट है तो वोटर्स भी कैंपेनिंग में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पहले एक माइंड सेट कर लेते हैं कि हमने इसको वोट देना है, राइट? तो जब उसकी कैंपेनिंग स्टार्ट होती है तो दे देमसेल्फ start participating in the campaigning process. The other thing which makes the elections democratic is acceptance of election outcome. Right? Acceptance of election outcome, इसको अगर हम लोग एक common layman language में इसको समझना चाहें तो it means कि जो ruling parties हैं वो भी lose कर जाती हैं election में. They often lose the elections. अब हमने चाइना का एग्जांपल पढ़ा था चैप्टर इनिशियल चैप्टर्स में कि इन चाइना द सेम पार्टी इज रूलिंग द कंट्री, सेम पार्टी इज विनिंग द इलेक्शंस एवरी टाइम, सेम पार्टी और द अलाइड पार्टीज दे आर विनिंग द इलेक्शंस, राइट? सो वहां पर हम ये कह सकते हैं कि द इलेक्शन आउटकम, द एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम इज नॉट एट ऑल देयर बिकॉज द सेम पार्टी इज विनिंग एंड दैट पार्टी इज नेवर लूजिंग द इलेक्शंस, whereas it is not there in our country. सो हमारी कंट्री में ये जो एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम है यही एक इंडिकेशन है एक हेल्दी डेमोक्रेसी का. सो व्हाट हैपेंस कि यूजुअली द लूजिंग पार्टी डज नॉट एक्सेप्ट द आउटकम ऑफ अ इलेक्शन. होता क्या है कि अगर जो पार्टी लूज कर जाती है इलेक्शंस इन केस, तो वो दे स्टार्ट पुटिंग एलिगेशन ऑन द इलेक्शन कमीशन और अगेन ऑन द विनिंग लीडर्स, राइट? तो हमारी कंट्री में ये चीज जो है ये बहुत ज्यादा नहीं है. The ruling parties routinely lose elections in India both at the national and the state level. अब अगर national level की बात करें तो we know कि before 2014 the Congress party was ruling the country. Congress party had ruled for 10 years. I mean 2 tenures, right? उसके बाद this BJP government has come in 2014. उसके 2 tenures हो गए हैं, so 10 years it will be there. अब next elections होते हैं तो you never know whether this party will be there or some other leader would be there. राइट? तो पार्टीज हमारी ऑफन चेंज होती हैं. आई मीन हर 2-3 इलेक्शंस के बाद जो पार्टीज पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो चेंज हो जाती हैं. सेम वाज देयर इन पंजाब आल्सो. अकाली दल पार्टी वाज रूलिंग इन पंजाब. उसके बाद 2017 इलेक्शंस हुए, उसमें अब कांग्रेस पार्टी इज देयर.
राइट. सो द कांग्रेस पार्टी अब ये रूल कर रही है 2022 में इलेक्शंस फिर होंगे. यू नेवर नो कि यही पार्टी दोबारा रूल करेगी या कोई और पार्टी भी आ सकती है. In fact, in every 2 out of 3 elections held in the last 15 years, the ruling party has lost. In the US, an incumbent or sitting elected representative rarely loses an election. US में जो sitting MPs होते हैं वो कम ही ऐसा होता है कि वो elections हार जाएं. लेकिन हमारी country में almost half of the sitting MPs और MLAs they lose elections. राइट. सो ये एक इटसेल्फ इंडिकेशन है कि जो इलेक्शंस है वो काफी हद तक हमारी कंट्री में डेमोक्रेटिक हैं. कैंडिडेट्स हु आर नोन टू हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग वोट्स एंड दोज विद नोन क्रिमिनल कनेक्शंस ऑफन लूज इलेक्शंस. नो डाउट क्रिमिनल कनेक्शन वाले जीत भी जाते हैं, बट नॉट ऑलवेज. Many a times it has been observed that the people who are having the criminal connection, they have lost the elections. Barring very few disputed elections, electoral outcomes are usually accepted as people's verdict by the defeated party. जो पार्टीज डिफीट हो जाती हैं वो ये मान लेती हैं इस चीज को कि उन्हें लोगों ने पसंद नहीं किया. In place of putting allegations on others, ये नॉर्मली हमारी कंट्री में डिफीटेड पार्टीज मान लेती हैं कि लोगों ने उन्हें नहीं चुना या लोगों ने ही उन्हें पसंद नहीं किया. राइट. सो टिल हियर पूरे चैप्टर में हम ये पढ़ते रहे हैं कि द इलेक्शंस इन इंडिया आर फ्री एंड फेयर. द इलेक्शंस इन इंडिया आर डेमोक्रेटिक. राइट. सो नो डाउट इट इज देयर, बट फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं, सम थिंग्स, सम एस्पेक्ट्स आर देयर व्हिच you can say hinders or which give challenges to this election commission in conducting the elections in free and fair manner. Sometimes it happens कि कोई candidates जो हैं वो अपनी मसल पावर या मनी पावर के बेस पे इलेक्शंस जीत जाते हैं. राइट. बट स्टिल इट इज एज मेंशन इट इज नॉट ऑलवेज. तो हम लोग एक कुछ अगर इंसिडेंट्स को छोड़ दें तो पूरी कंट्री में ऐसा नहीं होता. तो इसलिए हम लोग ये क्लेम कर लेते हैं दैट द इलेक्शंस इन इंडिया आर अ डेमोक्रेटिक वन. बट स्टिल देयर आर फ्यू क्वेश्चंस. अगर हम उन क्वेश्चंस को देखें तो हम ये सोचते हैं कि क्या वाकई हमारी कंट्री में जो इलेक्शंस है वो डेमोक्रेटिक हैं या क्या वाकई इलेक्शंस जो है फ्री एंड फेयर है. फर्स्ट क्वेश्चन इज, आर पीपल्स प्रेफरेंसेस बेस्ड ऑन रियल नॉलेज? एज अ वोटर हमें कई बार नहीं पता होता कि जैसे हम वोट दे रहे हैं, आई मीन व्हाट दैट पर्सन इज, आई मीन what that person is going to do, what are the policies of that person is, what the character of that person is. So हमें तो अपने कई बार कैंडिडेट्स की बहुत ज्यादा नॉलेज होती ही नहीं. हम एज अ वोटर ही कई बार अवेयर नहीं होते हैं. और ये बहुत एक कॉमन चीज है विच इज देयर इन आवर कंट्री. हमारे वोटर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है. उन्हें ये पता होता है कि वोट करना है और उनके वोट से जो गवर्नमेंट है वो फॉर्म होगी. आर द वोटर्स गेटिंग अ रियल चॉइस? This is a very, very important question, that are we as voters getting the real choice? It means कि no doubt हमारी कंट्री में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं. राइट. कुछ बड़ी हैं, कुछ छोटी हैं. बीजेपी है, कांग्रेस है, बड़ी पार्टीज हैं. साथ में कितनी छोटी पार्टियां हैं, 50 पार्टीज होंगी हमारे पास. और जब इलेक्शंस होते हैं तो इतने ही ऑलमोस्ट कैंडिडेट्स जो है वो इलेक्शंस में खड़े होते हैं. राइट. तो वी आर हैविंग दिस मच चॉइस कि इतने सारे लोग हैं जिनमें से हमने एक पर्सन को वोट देना है. राइट. तो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि इवन आफ्टर हैविंग 20 to 25 कैंडिडेट्स, हाउ कैन वी से दैट वी डोंट हैव एनी चॉइस? द थिंग इज कि वो एक चॉइस जो है, चॉइस इन नंबर जरूर है, बट सारे के सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं दे आर सेम इन देयर पॉलिसीज, दे आर सिमिलर इन देयर पॉलिसीज, सिमिलर इन देयर कैरेक्टर, सिमिलर इन देयर वे ऑफ वर्किंग एंड ऑल. तो वोटर्स के साथ क्या होता है, चाहे इसको चुन लो चाहे उसको चुन लो, एक ही बात है. देयर इज नो मच डिफरेंस कि आप किसको चुन रहे हैं वहां पर. तो ये एक रियल चॉइस तो नहीं हुई हमारे पास वोटर्स के पास, क्योंकि सारे एक ही जैसे हैं. सारी पॉलिटिकल पार्टीज की एक ही पॉलिसीज हैं. राइट. सो वी डोंट गेट a person जो हम कह सकते हैं कि okay we just want to give the vote to this person because that person is I mean he would be a very genuine one. ये choice हमारे पास होती नहीं है.
हमें सारे एक जैसे लगते हैं, हमें पता होता है कि सारे लीडर्स जो हैं ये एक ही जैसे हैं, और ये सारे जो भी इनके प्रोमिसेस होते हैं, इट इज टिल द इलेक्शंस आर हेल्ड, वंस दे आर इलेक्टेड देन वी पीपल हैव टू रन आफ्टर देम, राइट। तो एक रियल चॉइस तो हमारे पास अवेलेबल होती ही नहीं है, राइट। कैन एन ऑर्डिनरी सिटीजन होप टू विन द इलेक्शंस? इतना ज्यादा इसमें पैसा लगता है, इतनी ज्यादा पावर लगती है, तो एक ऑर्डिनरी सिटीजन तो है वो सोच ही नहीं सकता है कि वो इलेक्शंस जीत भी पाएगा, राइट। सो ये आई मीन एक आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए कि वी डोंट इवन आई मीन think of a common person or the independent candidate to win the elections, right? तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे इलेक्शन कमीशन के आगे बहुत बड़े चैलेंज हैं, राइट। तो ये चीजें अगर हमारी थोड़ी सी रिमूव हो जाती हैं तो परफेक्टली एक हमारा इलेक्शंस जो हैं वो एक परफेक्ट एज आई सेड कि इंडिपेंडेंट इलेक्शंस और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ये हो सकते हैं। सो व्हाट दीज चैलेंजेस आर: candidates and parties with a lot of money may not be sure of their victory, but they do enjoy a big and unfair advantage over smaller parties and independents. Right? So जो candidates और political parties हैं जिनके पास बहुत पैसा है, जरूरी नहीं कि वो जीत जाए, right? But they enjoy an unfair advantage on द स्मॉलर पार्टीज के ऊपर है कि बहुत अच्छी पावर अपनी एंजॉय कर लेते हैं, चाहे ये जीते या ना जीते, बट एटलीस्ट स्मॉलर पार्टीज और इंडिपेंडेंस को एक डर होता है इनका। इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, candidates with criminal connection have been able to push others out of the electoral race and to secure tickets from major parties. कई जगह पर यहाँ ऐसा होता है, आई एम नॉट जस्ट गोइंग टू नेम द स्टेट्स, बट इट इज़ वेरी कॉमन इन दोज स्टेट्स जहाँ पर जिन लोगों के क्रिमिनल कनेक्शन है या खुद ही क्रिमिनल्स हैं बट क्राइम प्रूव नहीं हुआ है, दे हैव पुश्ड अदर्स आउट ऑफ द इलेक्टोरल रेस। उनको कैंडिडेचर भरने ही नहीं दिया है, उन्हें इलेक्शंस लड़ने ही नहीं दिए जा रहे हैं। तो ये जो पावरफुल क्रिमिनल कनेक्शन वाले हैं वो स्मॉलर आप कह सकते हो इंडिपेंडेंस हैं या जो स्मॉलर कोई भी आप कैंडिडेट्स हैं उनको ये इलेक्शन रेस से बाहर ही निकाल देते हैं, इन्हें वो नॉमिनेशन फेल ही नहीं करने देते हैं। मतलब इतना थ्रेटन किया जाता है और खुद वो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से टिकट्स ले लेते हैं, वहां से इलेक्शंस जीत जाते हैं एंड द क्राइम स्टिल गोज ऑन दो स्टेट्स। ये काफी कॉमन चीज है और ये सिर्फ आप मूवीज में ही नहीं देखते हैं, ये चीजें एक्चुअल में भी होती हैं, right? Where the criminal connection people are ruling the areas. Some families tend to dominate political parties. Tickets are distributed to relatives from these families. ये बड़ी कॉमन चीज आपने देखी है आजकल। तो वैसे बॉलीवुड में भी बहुत ज्यादा ये वर्ड यूज हो रहा है, नेपोटिज्म, राइट? द वर्ड नेपोटिज्म इज बीइंग यूज्ड नाउअडेज, कई आप फेसबुक पे या न्यूज में सुनते रहते हैं। दैट इज एक्चुअली अ फैमिली रूल, राइट? कि जहां पर एक फैमिली है और वो है, उनके बच्चे हैं, आगे वही फर्दर आई मीन उस पर्टिकुलर आप कह लो बिजनेस है या पर्टिकुलर एरिया है उसको रूल करी जा रहे हैं। सो नेपोटिज्म जो है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी पॉलिटिक्स में भी, राइट? अब अगर हम एग्जांपल लेते हैं कांग्रेस पार्टी का ही, फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू टिल सोनिया गांधी, वी कैन से कि आई मीन दैट नेपोटिज्म इज गोइंग ऑन कि कांग्रेस पार्टी का जो प्रेसिडेंट है वो कोई और बन ही नहीं रहा है, एक ही फैमिली है जिसका जो हेड है वो ही कांग्रेस पार्टी का जो लीडर है वो या प्रेसिडेंट है जो बनी जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू है, उसके बाद इंदिरा गांधी है, उसके बाद फिर राजीव गांधी है, उसके बाद अब सोनिया गांधी है, राइट? तो सेम फैमिली जो है वो ही एक प्रेसिडेंट बनी जा रही है। इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ अकाली दल इन आवर कंट्री, सॉरी इन आवर स्टेट, राइट? प्रकाश सिंह बादल, ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंट्री ऑफ द स्टेट पंजाब के। उनका बेटा है सुखबीर सिंह बादल, वो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, राइट? उन्हीं की फैमिली के कुछ लोग जो हैं, अभी तो चलो उन्होंने अलग पॉलिटिकल पार्टी बना रही है, बट अदरवाइज दे हैड बीन गिवन टिकट। मनप्रीत सिंह बादल है, एक हरसिमरत कौर बादल है, शी इज आल्सो द एमपी, वो पार्लियामेंट में है इस समय, राइट? तो ये एक फैमिली ही जो है ये सब जगह रूल करी जा रही है। सो इसमें क्या होता है कि फिर जो बाकी लोग हैं उनको चांस ही नहीं मिल पाता। ये पावर में है, ये पावरफुल है, ये अपनी फैमिली को आगे बढ़ाई जाते हैं।
यस, ये जो नेपोटिज्म में है, फैमिली मेंबर्स जो है उनको इलेक्शन तो लड़ने ही पड़ते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो उनकी ऑलरेडी इतनी पावर होती है कि जीत भी जाते हैं, राइट? सो ये जो नेपोटिज्म है, एज मेंशन, कि दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, जहाँ पर टिकट्स जो है वो रिलेटिव्स या पूरी फैमिलीज को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं, आम लोगों को चांस ही नहीं मिलता है। वेरी ऑफन इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन्स। जैसे मैंने आपको बताया कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो सिमिलर हैं, उनकी पॉलिसीज सेम है, उनकी प्रैक्टिसेस सेम है, तो हमारे पास कोई खास चॉइस ही नहीं होती है। Smaller parties and independent candidates suffer a huge disadvantage compared to bigger parties. अब जो छोटी parties हैं, independent candidates हैं, उनको problem होती है because they don't have much power, they don't have much money to win the elections. Contest तो कर लेते हैं, but for winning the elections, the money and the muscle power which is required, that is absent in these independent candidates, so they suffer a lot because of these challenges, या आप कह सकते हैं ये जो loopholes हैं हमारे इलेक्शन सिस्टम में, इलेक्टोरल सिस्टम में, इसके कारण सबसे ज्यादा सफर करते हैं इंडिपेंडेंट या जेन्युइन कैंडिडेट्स। और ये जो चैलेंजेस हैं, इट इज नॉट देयर कि सिर्फ इंडिया में ही है, ये सभी जगह ये हाल है। आप किसी भी कंट्री में देख लीजिए जो एक वेल एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, वहां पर भी ये प्रॉब्लम्स जो है इलेक्टोरल सिस्टम में आती हैं। तो इसी के कारण अभी भी जो कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं हु आर डिमांडिंग दैट the reforms in our electoral system should be there, right? कि ये जो रिफॉर्म्स हैं उसके कारण शायद जो हमारे जितने भी चैलेंजेस हैं वो दूर हो जाएं, तो हमारा जो एक इलेक्शंस हैं at least that will be perfectly a democratic one, right? So I assume that the things are very much clear to you people.